Good morning, students. How are you? Today we are starting our ongoing content of the history book number 3rd, and that is related to the about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi and their national movements, the role in the national movements. So everybody knows ki how Gandhi ji plays an important role to get to get independent. So many of times they have created the movements, they encourage to other peoples to for the betterment of the society, for upliftment of the society, and also they encourage the many of the movement which are responsible to get the freedom. So lots of efforts by the Mahatma Gandhi have done the many of time from the 1915 whenever he returned from the South Africa till 1948 or 1947 whenever we will not got to the independent. So every aspect, every steps have play an important role by the Gandhi ji. So through these incidents make a Gandhi a very famous personality in India. Not even in India, even European nation also encourage, inspired by the view of Gandhiji's, by the ideology of Gandhiji's, because his one another important policy which was based on the truth and non-violence was encourage the many of the person of the society, many of the persons of the world's other leader, and also encourage to common people to participate in these kind of national movements. So after that, whenever he become a famous leader, a popular leader among the citizen, and also encourage to the those people, they have reflected on the society as a common man, and after the meet by the Mahatma Gandhi, they encourage them for to the other purpose. So in this segment we will see how the many of incidents, whether they are related to the round table, whether they are related to the Simon Commission, and many more incidents which are related to the this story. So let us one by one what was done by the Gandhiji and what was their role. So in this, that is the salt satyagraha. Our today's content is class 12 history, and the main topic is that is salt सत्याग्रह, नमक कानून जिसको हम कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह. देखिए, उससे पहले अगर हम बात करें तो कि द सेवरल इयर्स गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट चला रखा, दैट इज द NCM. इट इज नोन एज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट which was started from 1920 to 1921. So it was not success because due to the violence in the Chora Chori incident in UP Gorakhpur. So after that, Gandhiji have called off this movement, that is the NCM. But due to some circumstances, British government raised the taxes on over the Indians. So many of the persons of Indians avoid the taxes policies. But and then Gandhiji started ki that is a salt which is the basic need of the person. So how can British government raise their taxes? So इस टैक्स से रिलेटेड कुछ और चीजें भी हैं जो इसको किल करती हैं. सबसे पहले हम वन बाय वन शुरुआत करेंगे कि सॉल्ट सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ था. यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन प्रिपेयर होगा सॉल्ट सत्याग्रह का, वो हम क्लियर करेंगे. बट सॉल्ट सत्याग्रह से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो गांधी जी के थ्रू देखे गए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द साइमन कमीशन. देखिए, आफ्टर नॉन कॉपरेशन गांधी जी बिल्कुल कुछ टाइम तक पॉलिटिक्स में एनकरेज नहीं थे, यानी कि उन्होंने वापस से री एंट्री ली है. री एंट्री मीन्स दोबारा प्रवेश किया है पॉलिटिक्स में, री एंट्री इन पॉलिटिक्स. तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में गांधी जी ने री एंट्री ली है. सो दैट इज इन 1928. और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कमीशन आया था, दैट इज द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन, ये हमें क्वेश्चन अलग से प्रिपेयर करना होगा
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन देखिए, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया और क्यों आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे। टोटल 7 मेंबर्स, यानी कि इसमें जो मेंबर्स थे वो कितने थे, टोटल 7 मेंबर्स थे। तो यहाँ हम साइमन कमीशन को पहले हम क्लियर कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन होगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। इस कमीशन के हेड कौन थे, सर जॉन साइमन was head this commission। इस कमीशन के जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, आपको सबको पता है ये चीज। ये क्यों आया था, वाई टू रिफॉर्म्स इन एक्ट 1919, यानी 1919 में एक एक्ट भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने थे। ये देखना था कि दीज आर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल और नॉट। क्योंकि जब 1990 का एक्ट आया था 1919 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक ऐसा एक्ट बनाकर भेजेंगे 19, यानी कि 10 साल बाद 28 में, जो उसको देखेगा कि ये सक्सेस है या नहीं। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इस कमीशन को भेजा था एक्ट में रिफॉर्म करने के लिए 1919। क्लियर। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से इसको देखा कि यहाँ पर तो हालात और भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा था। तो इसीलिए ये किस लिए आया था, टू रिफॉर्म्स इन एक्ट 1919 एंड द मेक रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, constitutional reforms and make recommendation of government, यानी कि गवर्नमेंट की एक पुनराग्रह के लिए ये आया था। टोटल कितने मेंबर्स थे इसमें, 7 मेंबर्स थे। इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन। इसका अदर नेम क्या था, दैट इज द व्हाइट कमीशन। इस कमीशन का दूसरा नाम क्या था, ये हमसे पूछा जा सकता है। दैट इज नोन एज द व्हाइट कमीशन, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज द स्टैच्यूअरी कमीशन। स्टैच्यूअरी कमीशन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, स्टैच्यूअरी कमीशन। ये हमें याद रखना होगा। ओके। लेकिन इसका अपोज किया था, मैं अब यहां से लिखना शुरू कर रही हूं, अपोज। महात्मा गांधी ने भी इनका अपोज किया था। इसके अलावा किस किस ने अपोज किया था, नेहरू ने, जिन्ना ने, सब ने इनका अपोज किया था। अपोज बाय MK गांधी, JL नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये सब इसको अपोज कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। नो एनी मेंबर, नो एनी मेंबर फ्रॉम इंडिया, भारत से इस ग्रुप में, इन दिस कमीशन, यानी इस कमीशन में भारत से कोई भी मेंबर नहीं था। ये हमें याद रखना। ये एक शॉर्ट नोट चल रहा है साइमन कमीशन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पुटअप किया जा सकता है। क्लियर। इस कमीशन में कोई भी पर्सन इंडियन नहीं था, इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब इसके लिए क्या स्लोगन लगा था, स्लोगन तो यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से नजर आ जाएगा आपको। स्लोगन मतलब इसका जो नारा क्या था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये नारा लगा था। आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस है, साइमन गो बैक। क्लियर। एक और इंसिडेंट जुड़ा हुआ है इससे, 1928 में जब ये जगह जगह अपना एक पब्लिसिटी कर रहे थे साइमन कमीशन वाले, तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी लाहौर में। क्यों, ये हमें याद रखना है। 1928 में जब साइमन कमीशन, मैं यहां लिख देती हूँ, इसको हटा करके,
1928 में लाहौर में जब ये कमीशन अपने एक रैली निकाल रहा था, तो जब ये कमीशन अपने कुछ मीटिंग्स कर रहा था, तो एक भीड़ थी लाला लाजपत राय के साथ। उस भीड़ ने इसका अपोज किया और उसमें लाला लाजपत राय, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हो गई थी? दैट इज द पुलिस स्ट्रक और लाठी चार्ज। किसके थ्रू? पुलिस स्ट्रक एंड लाठी चार्ज। पुलिस ने उनके ऊपर अंधाधुंध लाठियां बरसाई थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी नवंबर 1928 में लाहौर में। क्लियर? ये हमें याद रखना है, ओके? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज हो गई थी और उस इंजरीज की वजह से नवंबर 28 में उनकी डेथ हो गई थी। ये हमें याद रखना है। सो ये है एक साइमन कमीशन पे शॉर्ट नोट। देखिए यहाँ हमें ज्यादातर 6-7 लाइनें पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइमन कमीशन क्या था, कब आया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था और इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स। इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन इसके हेड थे। क्यों आया था? ये जो 1919 का एक्ट आया था उसमें कुछ रिफॉर्म्स के लिए, कि अगर वो अकॉर्डिंग टू वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाए, इसलिए आया था। और इस कमीशन का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट कमीशन। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। तो यहां मैं लिख लेती हूँ, ड्यू टू ऑल ब्रिटिशर्स मेंबर। ठीक है, यानी कि सारे के सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। दूसरा नाम इसका स्टैचुअरी कमीशंस भी कहते हैं। इसे कंपटीशन में पूछा जाता है। ये क्या हुआ था? इसको अपोज किया गया था गांधी जी, जिन्ना और पंडित नेहरू के थ्रू अपोज किया गया। क्यों अपोज किया गया? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था कि बिना आप हमारी परमिशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करो, अरे भी कुछ इंडिया वालों से तो पूछो, इसलिए इसको अपोज किया गया। एंड आफ्टर दैट इसके खिलाफ नारे लगाए गए, स्लोगन लगाए गए। क्या नारा था? साइमन गो बैक। क्लियर यहाँ तक? ये जब लाहौर में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, साइमन कमीशन के खिलाफ, तभी वहां पर पुलिस ने पथराव किया, लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी 1928 नवंबर। ये आपको याद रखना है। दिस इज साइमन कमीशन। तो आपको पूरा सिस्टमेटिक नोट बनाने हैं। ये तो अभी आपको प्रॉपर जगह नहीं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। सो 1928 में जब साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ बारदौली में भी सेम ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ था, बारदौली इन सत्याग्रह। तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बारदौली कहाँ पर है? मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट बारदौली। तो स्टूडेंट, आपको प्रॉपरली ये नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है बेटा? और जितने आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतने ही आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप याद रखिए। नाउ आवर नेक्स्ट डेट इज अ बारदौली। बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह है ना? यस। देखिए बारदौली में क्या हुआ था, ये है गुजरात में, ठीक है? और ये जस्ट लाइक पीजेंट मूवमेंट था, और वहां के पीजेंट ने क्यों शुरू किया था? नो टैक्स के लिए। नो टैक्स मूवमेंट भी इसे कहते हैं। क्लियर? नो टैक्स मूवमेंट। और ये शुरू हुआ था 1928 में बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर एक इंसिडेंट केवल इतना ही दिया, आपको ये याद रखना है। बारदौली कहाँ पर है? गुजरात में, सूरत के पास। वहां पर पब्लिक ने मूवमेंट शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था? नो टैक्स मूवमेंट, की हम अब कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बारदौली मूवमेंट किस नाम से जाना जाता है? वो है नो टैक्स मूवमेंट। कब हुआ था? 1928 में। इसको लीड कौन कर रहा था? इसको हेड कौन कर रहा था? दैट इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तभी क्या हुआ कि इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस हेल्ड अ एनुअल सेशन इन लाहौर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का एनुअल यानी कि वार्षिक मीटिंग
कहाँ हुआ है? लाहौर, 1929 दिसंबर। ये पूर्ण स्वराज वाली इंसिडेंट है जो आपको मैंने बताई थी, पूर्ण स्वराज कैसे हुआ था। ठीक है, यानी हमने जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो 26 जनवरी को ही क्यों करते हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को बन गया था, तैयार हो गया था। फिर हमने 2 मंथ्स वेट क्यों किया था, मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ये वही इंसिडेंट है। ओके, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो हम देख रहे हैं। तो एक कांग्रेस का सेशन हुआ है एनुअल 1929 दिसंबर में। ठीक है, क्यों हुआ है ये सेशन? कि मीटिंग वाज सिग्निफाइड 2 थिंग्स, द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें 2 बातें तय हुई कि इसके हेड कौन थे। दिस मीटिंग हेडेड बाय JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस मीटिंग के कौन थे? अध्यक्ष थे। एंड सिग्निफाई पासिंग द बैटन ऑफ द लीडरशिप बाय द यंगर जनरेशन। और ये कहा था कि अब जो मूवमेंट है वो यंगर जनरेशन को देना चाहिए। एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द कमिटमेंट टू द पूर्ण स्वराज। और यहीं पर ही क्या डिक्लेयर किया गया? प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। ये आप याद रखना, कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया है, और वो है दिसंबर 1929, यानी कि जिसको हम कहते हैं बराबर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमें चाहिए। सो नाउ द पेस ऑफ द पॉलिटिक्स पिक्स अप वंस मोर ऑन 26 जनवरी 1930। तो यानी कब सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी 1930, यानी आने वाली 26 जनवरी को हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ये कहाँ पर प्रोक्लेम हुआ है? दिसंबर 29 में। कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड विद द नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड बाय द डिफरेंट वेन्यूज। इसके थ्रू होगा बाय द नेशनल फ्लैग, यानी कि हर जगह क्या फहराए जाएंगे? झंडे फहराए जाएंगे, नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाएगा। एंड द पेट्रियोटिक सॉन्ग बीइंग संग, और देशभक्ति के गाने भी गाए जाएंगे। सो गांधी जी हिमसेल्फ इशूड द precise to instructions as how to this should be observed. It would be good, said, the declaration of independence is made by the whole villages, whole cities। यानी कि गांधी जी ने कहा था कि ये जो हम इंडिपेंडेंस मनाएंगे हर जगह मनाया जाएगा, सारे गांवों में, सारे शहरों में, सारे कस्बों में। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर ये वाला पूर्ण स्वराज नहीं होगा। कब हुआ ये पूर्ण स्वराज? कब हुआ इसकी घोषणा? यस, दिसंबर 1929 में। कब मनाने का तय हुआ है? जनवरी 1930 में। ओके, सो इस तरीके से ये एक इंसिडेंट है पूर्ण स्वराज से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि जो ये पूर्ण स्वराज का इंसिडेंट है, ये जब गांधी जी ने कहा कि ढोल नगाड़ों के साथ इसको करना चाहिए, यानी ड्रम बीट्स होने चाहिए, अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। सो गांधी जी सजेस्ट द टाइम ऑफ द मीटिंग बी एडवर्टाइज टू द नेशनल ट्रेडिशनल वे बाय द बीटिंग ऑफ ड्रम्स, यानी कि ढोल पीट कर हमें उद्घोष करना होगा कि आज़ादी हमें मिल गई है। द सेलिब्रेशन विल बिगिन टू द होस्टिंग बाय द नेशनल फ्लैग। द रेस्ट ऑफ द डे वुड बी स्पेंट नो डूइंग द कंस्ट्रक्टिव वर्क, सो वेदर इट्स विनिंग और सर्विस अनटचेबल और यूनियन ऑफ हिंदू और मुस्लिम, सो प्रोहिबिशन ऑफ वॉर। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जब तक एक हम यहाँ से किसको रिमूव नहीं करेंगे? अनटचेबिलिटी को, प्लस उसको हमें रिमूव करना है, यानी कि उनको भी हमें साथ लेना है, प्लस हिंदू और मुस्लिम को भी रीयूनियन करना है। हिंदू प्लस मुस्लिम्स को हमें क्या करना है? रीयूनियन मतलब एक साथ लाना है, इकट्ठा करना है। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक कि क्या बोलते हैं उसे, कि हम अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो पार्टिसिपेंट वुड टेक अ प्लेज अफर्मिंग दैट इट वाज द
inalienable right. So Indian people as the other people, we have to the freedom to enjoy the fruits of their toil. So if any government deprives to the people to the these rights and oppresses them, to the people have the further right to the alert of abolish it. यानी कि अब हमें इसके बारे में और बातें करनी होंगी. हमें इसको खत्म नहीं करना, बल्कि हमें जो अब हमारे और राइट्स हैं वो भी लेकर देने होंगे. सो दिस वाज द सीन ऑफ पूर्ण स्वराज. यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो. ये बारदौली का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है. राइट अबाउट बारदौली मूवमेंट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम ये लिखेंगे, राइट अबाउट द पूर्ण स्वराज इंसिडेंट. पूर्ण स्वराज इंसिडेंट के बारे में भी लिखना है. अब हमारा जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है दैट इज द दांडी. कैसे शुरू हुआ था, दांडी वाला क्वेश्चन हम पुट करते हैं. दांडी. दांडी इज द नेम ऑफ प्लेस. ठीक है. इसको हम कहते हैं दांडी मार्च. दांडी यात्रा जो हमारे किससे रिलेटेड है, नमक कानून से रिलेटेड है. हम सभी जानते हैं दांडी का जो इंसिडेंट है वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो बेसिक थिंग्स हैं लाइक सॉल्ट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज रेज्ड देयर टैक्सेस. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक कि soon after the observe this independence day, the Mahatma Gandhi announced that they lead to the March break, one of the most widely disliked law, which gave to the state of monopoly in the manufacture and the sale of salt. ये जो नमक था उस पर मोनोपोली करके गवर्नमेंट ने उसके मैन्युफैक्चर को बैन कर दिया था. Speaking on his salt monopoly was another illustrations by the Gandhi's tactical wisdom. So for a very every Indian household salt was the indispensable. Yes, सबके लिए ज़रूरत होती है. तो people are forbidden from making to salt even in the domestic use, compelling them to buy and shop in a high price. अब क्या हुआ था कि उस नमक को जब मोनोपोली गवर्नमेंट अपने पास ले ली थी, उसको महंगे दामों में बेचा जाने लगा नमक को. तो अब आप सोचिए कि नमक जैसी चीज़ जो डेली की आवश्यकता है, हर घर की आवश्यकता है, उस पर इतना हैवी टैक्सेस कोई कैसे बियर करेगा. सो इट वाज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशंस फॉर द पर्सन. So the state monopoly over salt was the deeply unpopular by making its target to Gandhiji hope to mobilize a wider discontent against the British rule. और इसी के लिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया जो कि पूरे इतिहास में फेमस है, हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में फेमस है. दैट इज द नमक कानून, सॉल्ट लॉ. दांडी यात्रा, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हो, है ना. आपको पता है, हम इसके बारे में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है. राइट ए नोट्स ऑन द दांडी मार्च. दांडी मार्च, मार्च इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये यात्रा मार्च में शुरू हुई थी, तो इसलिए इसका मार्च से नाम शुरू है. बाकी इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं और सॉल्ट लॉ भी कहते हैं. बट वो हम पढ़े उससे पहले हमें कुछ एक चीज़ और देखनी होगी, दैट इज द गांधी इरविन पैक्ट. यहाँ मैं लिख देती हूँ गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन समझौता ये हुआ है 5 मार्च 1931. 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन हुआ है जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट. ठीक है. अब देखिए ये क्यों हुआ है. ये देखिए दांडी यात्रा शुरू होने से पहले हुआ है ये. और क्यों हुआ है, ताकि मोस्ट इंडियंस टू अनसिग्निफिकेंट द गांधीजी's challenges the British Raj apparently did not tell, although Gandhiji given advance the notice to his salt march to the Viceroy Lord Irwin. ये कौन था, ये वाइसराय था उस टाइम. आपको वाइसराय की पोस्ट तो पता होगी ना, यानी कि ब्रिटिश सरकार का हेड उस टाइम लॉर्ड इरविन था. So Lord Irwin failed to the grasp of
फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द अटेंशन ऑन 12 मार्च 1930। अब देखिए 12 मार्च आया, उससे पहले हम 5 मार्च की घटना को देखते हैं कि क्या हुआ 5 मार्च को। सो गांधी और इरविन के बीच कुछ एक समझौता हुआ था। गांधी जी ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी। वो कितनी डिमांड्स रखी थी? 11 डिमांड्स वर रेज्ड बाय गांधी जी in front of इरविन। गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड को इरविन के सामने रखा था, और वो 11 डिमांड्स क्या होंगी? बहुत ईजी डिमांड्स हैं कि भाई जितने भी हमारे इंडियंस को अरेस्ट किया गया उनको रिलीज कर दो, जो भी टैक्सेस बढ़ाए हैं उनको हटा दो या उनको कम कर दो, या फिर जो भी आप हमारे ऊपर ये बिना मतलब के एक मिसबिहेव वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं इन सबको ड्रॉप कर दो। तो इस तरह के कुछ 11 डिमांड्स थे। उधर इरविन ने भी कुछ गांधी जी से कमिटमेंट्स किए थे, गांधी जी से कुछ शर्तें बनवाई थी कि अगर आप शांतिपूर्वक व्यवहार करेंगे तो हम आपकी सारी बातों को मान लेंगे, अगर ये सारे मूवमेंट आप ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, तो आपकी डिमांडों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच एक डिमांड्स को लेकर कुछ समझौता हुआ था। सो ये जो साइन हुआ था ये हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था। अब देखिए यहाँ पर एक और इंसिडेंट आ जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसको हिंदी में कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। आपने अगर बचपन में सुना हो तो, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, इसको राउंड टेबल कहते हैं। ये 3 हुए हैं, 1930, 1931 और 1932। तीनों लंदन में हुए हैं, ठीक है। तो जो सेकंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए हुए हैं? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुए ताकि इंडियंस को समझाया जा सके ब्रिटेन ले जा करके कि किस तरीके से आप ये जो एक मोमेंट्स क्रिएट करो जिससे बड़ा ही वायलेंस वाली सिचुएशंस हो रही है उससे छुटकारा मिल सके, ठीक है। तो राउंड टेबल पे हुए थे इसलिए वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। बाकी इंजीनियर्स वगैरह मैकडॉनल्ड सिस्टम बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जो सेकंड वाला है वो राउंड टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वाले राउंड टेबल में गांधी जी लंदन गए थे। तो कौन से में गए थे? सेकंड में। कौन गया था? गांधी जी, ठीक है। यहीं पर अंबेडकर के साथ उनके क्लैशेस भी हुए थे, झगड़े भी हुए थे अनटचेबिलिटी को, मतलब क्या बोलते हैं, दलित्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ वो चाह रहे थे कि कुछ उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अलग से इलेक्शन के लिए सिस्टम होना चाहिए। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कौन से राउंड टेबल में गए थे? सेकंड में गए थे, आपको ये याद रखना। दूसरे सम्मेलन में, दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गए थे। सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए हैं? लंदन में हुए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड में गए हैं, और जब सेकंड में गए थे तो उससे पहले गांधी और इरविन बात करके गए थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी 11 डिमांड्स जो थी वो राउंड टेबल पर जाने से पहले ही सेट हो गई थी। तो गांधी जी बड़े विश्वास के साथ गए थे कि यानी कि जो मैंने जो डिमांड्स रखी हैं इरविन के सामने वो पूरी होंगी ही। अगर वो हो जाता है तो फिर तो नो डाउट हमारे भारत में बिल्कुल शांति व्यवस्था हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्या पता था गांधी जी को कि बड़े निराश होकर लौटना पड़ेगा। एटलीस्ट जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल से इंडिया वापस आए थे तो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जैसा उन्होंने चाहा था वो वैसा नहीं हुआ। सो जो गांधी जी की डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है, दैट इज कि जो सेकेंड राउंड टेबल हुआ था गांधी जी का वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। सो ऊपर से यहाँ पर जो सॉल्ट टैक्स था वो भी इंक्रीज कर दिया था, नमक कानून भी बढ़ा दिया था। तो गांधी जी को बड़ा ही ऑड लग रहा था कि ये व्हाट इज द सिचुएशन। सो एटलीस्ट उन्होंने अल्टीमेटली क्या करा, उन्होंने शुरू कर दिया दांडी मार्च। और कौन सी तारीख को शुरू किया है? 12 मार्च 1930. So Gandhi ji began walking from the ashram at the Sabarmati towards the ocean, Dandi.
देखिए ये तो, लेकिन पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन है? यस यस बेटा, टेल मी। ये हमारा क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, कितनी डिमांड्स रखी गई है। ये राउंड टेबल से पहले हुआ था, बाद में तो सेकंड राउंड टेबल से पहले हुआ था। तो गांधी जी को बिलीव था कि जो मैंने डिमांड्स रखी है उनको इजीली एक्सेप्ट किया दिया जाएगा, बट इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से इसको अपोज किया गया। अब हम बात करते हैं हमारे दांडी वाले सेगमेंट की। यस, तो कब हमारा ये दांडी वाला सेगमेंट शुरू हुआ है? सो 12 मार्च 1930। देखिए कुछ इंसिडेंट्स हैं हमारे, कुछ डेट्स हैं, वो हमें यहाँ पर देखनी होंगी। 12 मार्च 1930 गांधी जी स्टार्ट दिस मूवमेंट। गांधी जी ने मूवमेंट कब शुरू किया है? 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू हुआ है? साबरमती से। फ्रॉम साबरमती, साबरमती आपको पता है क्या? वहां जहाँ पर आश्रम था जिसका, जहाँ ये रहते थे, टुवर्ड्स द ओशन। साबरमती टू दांडी, ठीक है। दांडी कहाँ पर है? अरेबियन सी के किनारे पर है, आपको पता ही है। तो ओशन का हम नाम नहीं लिखेंगे, दांडी का नाम लिखेंगे। सो ही रीच्ड एज द डेस्टिनेशन 3 weeks लेटर। 3 weeks दिया है, वैसे कहते हैं, एक डेटा मैंने पढ़ा है, दैट इज द, वो कितने दिनों तक चले हैं? 24 days वो चले हैं, और 10 miles एवरी डे। तो 24 दिन, जैसे आपकी बुक में 3 हफ्ते मतलब 21-22 दिन का आइडिया है, और एक डेटा जो हम कॉम्पिटिशन वगैरह में भी बताते हैं वो अप्रॉक्स इतने का आता है कि लगभग 24 दिन उन्होंने यात्रा करी है, या 24वें दिन पहुंच गए हैं, और एवरी डे 10 miles चले हैं, और अप्रॉक्स करीबन 72-70 के करीब लोग थे, 72 के करीब पर्सन थे। मैं एग्जैक्ट लिख देती हूँ, अप्रॉक्स 72 पर्सन थे उनके इस यात्रा में, और वहाँ पर दांडी पहुँच करके उन्होंने नमक बनाया है। सो ही डिड एंड देयर बाय मेकिंग हिमसेल्फ अ क्रिमिनल द आईज ऑफ द लॉ, और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को कानून की नज़रों में गुनहगार बना लिया। मीनवाइल द पैरेलल सॉल्ट मार्च वर बीइंग कंडक्टेड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से ये नमक का जो कानून है वो गांधी जी ने तोड़ दिया, और यहीं से शुरुआत हो गई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, दैट इज द CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक ग्लॉसरी में देखिए, आपको पिक्चर्स पर भी पॉइंट आउट करना है वेदर दे आर रिलेटेड टू द 13.6। देखिए गांधी जी का फोटो दिया हुआ है आगे आगे, और 13.7 में भी है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर जाता है कि दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू द, तो एवरी पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू विल रीड द कंटेंट, सो फोकस ऑन एवरी पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वी वांट टू अचीव 100. So our next question that is given in the box, blue box, why the salt सत्याग्रह? सॉल्ट सत्याग्रह क्यों किया था गांधी जी ने? कि क्या सॉल्ट सत्याग्रह एक सिंबल बन गया था प्रोटेस्ट का, विरोध का? यस, क्योंकि गांधी जी बड़े उद्वेलित हो रहे थे, बड़े एग्रेशंस में थे। क्यों? क्योंकि जब वो लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल में, तब भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला बातों का। इसके अलावा इरविन से उन्होंने बातें करी तो भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अल्टीमेटली गांधी जी हैज फाइंड दैट इज द वन वे टू अवॉइड दिस सिचुएशन, सो दैट इज द ब्रेक द रूल्स। कानूनों को तोड़ो, जो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए उन कानूनों को तोड़ दो, इसी से ही हम बहुत हद तक जीत सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन हमारी ग्लॉसरी में भी दिया हुआ है। देखिए नीचे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई वाज द सॉल्ट डिस्ट्रॉय बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट? ठीक है, सॉल्ट डिस्ट्रॉयड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। व्हाई डिड महात्मा गांधी कंसिडर द सॉल्ट टैक्स मोर ऑप्रेसिव देन अदर टैक्स? यानी कि क्या जो सॉल्ट सत्याग्रह है, क्या ये इफेक्टिव होगा इंडिया के लिए,
क्या गांधी जी को ऐसा लग रहा था? तो हम बात करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने क्या लिखा है इसके बारे में अल्टीमेटली। सो गांधी जी ने लिखा है कि इन ऑर्डर टू द यूज ऑफ सॉल्ट हैज नो पेड टू टेक्स विच इज टाइम्स इवन द 14 टाइम्स इट्स वैल्यू। मतलब कि जब किसी बेसिक चीज़ की वैल्यू बेसिक वैल्यू से आई 14 टाइम्स, तो नो डाउट आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉस्टली हो गया। द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय द सॉल्ट, इट कैन नॉट सेल प्रॉफिटेबली। अब अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको ख़त्म कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है नमक को। वही कहाँ की बात हुई? तो सीधा सीधा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक अत्याचार हो गया लोगों पर। तो अल्टीमेटली द टैक्सेस ऑफ द नेशन वाइटल नेसेसिटी टू प्रिवेंट द पब्लिक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रॉय what nature manufactures without efforts. No adjective too strong enough to the correction with in the done in the manner policy। यानी कि इतना बुरी तरीके से उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये किस का एक तरीके से रूल है, किसका कानून है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो गांधी जी बता रहे थे कि ये जो पॉलिसी है, ये जो कानून लेके आए हैं, ये ऐसा नहीं है, हमको इसमें कोई ना कोई रिफॉर्म्स करना होगा। सो फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज आई हेयर टेल्स सच वेंटर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशंस प्रॉपर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूवमेंट्स और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया। एंड द अमाउंट्स ऑफ स्नॉट टन ऑफ द साल्ट आर सेड टू बी डिस्ट्रॉय इन द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट पर भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ। So the same tales comes from Dandi. So whatever there is a likelihood of the natural salt being taken away by the people living in the neighborhood, such as the areas of their personal use, the salt officers posted the sole purpose to carrying on destruction. So इस तरीके से गांधी जी को कई बार ये लगता था कि ये जो कानून है सॉल्ट लॉ का, ये बहुत अच्छा है और इसी के थ्रू हम अपने कंट्री के पर्सन में हम ये इस तरह का एक जोत जगा सकते हैं लोगों के मन में। तो इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था कि वाई सॉल्ट डिस्ट्रॉय बाय द कॉलोनी गवर्नमेंट उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर रही थी? क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। जब उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था तो वो उस नमक को ख़त्म कर देते थे। और गांधी जी ने क्या सोचा कि इस तरीके से हमारे खुद की जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो रही है। ओके, सो उन्होंने क्या करा कि इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाए कि उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें टैक्स नहीं, इसलिए टैक्स भी नहीं पे करना पड़े, इसलिए उन्होंने बाई सेल्फ नमक बनाना शुरू किया और नमक कानून को ब्रेक किया। जब उन्होंने देखा कि कोंकण जैसे एरिया पर कितने टन नमक को ख़त्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, जबकि लोग नमक के लिए तरस रहे हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको करना है। ये बहुत सेगमेंट इम्पॉर्टेंट था, तो चाहे वो आपका बारदोली मूवमेंट हो, नॉन साइमन कमीशन हो, साइमन कमीशन का आपको बहुत ध्यान से करना है। एंड आफ्टर दैट साइमन कमीशन के बाद हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन आया था पूर्ण स्वराज, वो आपको अच्छे से करना है। एंड आफ्टर दैट हमारा आया था कि सॉल्ट कैसे, दांडी मार्च, एंड उसके बाद हमारा गांधी इरविन फैक्ट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये करने हैं। और साथ साथ ये जो ब्लू ग्लॉसरी में दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे लिए, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यू शुड टू फोकस ऑन द पिक्चर क्वेश्चन बेस्ड इज ऑल्सो मस्ट, बिकॉज many of time we have seen this kind of question. So prepare a list of small question, picture based question, map based question, just like a Chaura Chauri, just like a Gorakhpur, just like a Dandi, Sabarmati, just like a Porbandar. So these are the places which is very important for the map point of view. So whenever you will read the chapter, to circle the places and indicate that is a map based. Okay, so whenever you will
reading once again, so you will definitely find a question that is related to map based, and similarly you should to find about the particular places or the state about this place. So if you will give this practice, so no doubt कि आप रेगुलरली प्रिपेयर होते जाएंगे. तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, डू योर वर्क प्रॉपरली रेगुलरली. थैंक यू, गुड बाय.